Good morning, class 7. I welcome you all in the English class once again. Today we will discuss the question answers of lesson number 10, An Alien Hand. Let's begin with the question number 1. How does Tillu manage to find his way to the forbidden passage? One day, Tillu's daddy was asleep. The boy picked up daddy's iCard. Then he walked towards the forbidden secret passage. The card helped him open the door and enter the passage. एक शाम दोपहर उसके पापा सो रहे थे तो उसने चुपके से अपने पापा का iCard निकाला और जिस रास्ते पे forbidden secret passage, forbidden मतलब ना करने के लिए जो काम हो, उस सीक्रेट पैसेज पे वो चला गया और डोर खुल गया और वो पैसेज में एंटर कर गया. What did Tillu hope to see once he emerged from his underground home? टिल्लू को क्या होप थी कि उसे क्या देखने को मिलेगा? Tillu hoped to see the sun or the stars after getting out of his underground home. Question number 3. Why did Tillu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? उसके फादर ने उसे क्यों एडवाइस किया कि उस प्लैनेट के सरफेस पे ना जाए वो? Tillu's father told him not to try to go to the surface of the planet because he won't be able to breathe in the thin air or withstand the low temperature there. क्योंकि वहां पे जो एयर होती है वो बहुत थिन होती है जिसमें आप प्रॉपरली सांस नहीं ले सकते और वहां का टेम्परेचर बहुत लो होता है जो आपको फ्रीज कर देता है. This was the advice given by Tillu's father. What changes had occurred which forced people to live in underground homes? क्या क्या चेंजेस अकर हुए, सामने आए, जिसने फोर्स किया लोगों को अंडरग्राउंड रहने के लिए? द चेंजिंग हीट ऑफ द सन, जो हीट थी सन की वो बहुत ज्यादा हो गई. द चेंजिंग हीट ऑफ द सन क्रिएटेड कंडीशंस दैट किल्ड ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स. इतनी ज्यादा हीट थी जिससे सभी पशु और पक्षी मर गए. The air became thin and human beings could freeze to death. Next question. Why was everyone in the control room greatly excited? Control room में जो थे वो बहुत excited क्यों थे? All. Everyone in the control room was greatly excited because they had seen 2 spacecraft coming towards their planet. क्योंकि उन्होंने देखा कि 2 spacecrafts उनकी planet की तरफ आ रहे थे. Question number 6. Was the spacecraft manned or unmanned? How do you know it? वो spacecraft manned था कि unmanned? Manned means जिसमें human beings हो, आदमी हो. Unmanned means जिसमें ना हो. The spacecraft that landed on the surface was unmanned. उसमें कोई man नहीं था. It contained only instruments. A mechanical hand tried. We come to know this because a mechanical hand tried to collect samples of soil. What did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft? Number 1 member और number 2 member ने क्या suggest किया कि हमें क्या करना चाहिए? The number 1 was in charge of defense. He suggested that they should wait till the craft landed on the surface. जब तक वो land नहीं करता तब तक हमें wait करना चाहिए. What do you think the mechanical hand was trying to do? आपको क्या लग रहा था कि मैकेनिकल हैंड क्या करना चाहता था? द मैकेनिकल हैंड दैट इमर्ज फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट, जो एलियन स्पेसक्राफ्ट से मैकेनिकल हैंड निकल कर आया, वो सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करना चाहता था फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मार्स. द पर्पस वॉज टू स्टडी इफ देयर वॉज लाइफ ऑन इट. और जो पर्पस था इसका वो ये था कि मार्स में लाइफ है कि नहीं. नासा, यू ऑल बेटर नो कि हमारा एक नासा इंस्टीट्यूशन है जो फाइंड आउट करता है अदर प्लैनेट्स में क्या चल रहा है, कैसे है. तो वही उसी नासा ने वाइकिंग मिशन के अंडर 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे मार्स कलेक्ट करने के लिए सॉइल की, वहां पता लगाने के लिए कि वहां पे लाइफ है कि नहीं. टिल्लू प्रेस द रेड बटन and the damage was done. What was the damage? Tillu pressed the red button. It is Dad who made the neutral again. टिल्लू ने प्रेस कर दिया रेड बटन, डैड ने उसको दोबारा से न्यूट्रल करा, बट द डैमेज वॉज डन. द मैकेनिकल हैंड स्टॉप्ड वर्किंग.
it became inactive. Where did the spacecraft come from? Spacecraft कहाँ से आया था? The spacecraft had come from the planet Earth. कहाँ से आया था? Earth से. It was sent by NASA, National Aeronautics and Space Administration, America. We have studied about this NASA in class 6 also, if you have remembered. आपको याद होगा कि हमने इस NASA के बारे में 6th standard में भी पढ़ा था. About Kalpana Chawla when we were studying. Question number 11. On which planet do Tillu and his parents live? Tillu and his parents live on a planet with thin air, freezing cold, and no animals on surface. Next question. If you had to live in a home like Tillu's, what parts of life would you find most difficult? What compensations might there be? Living underground in artificial conditions without the light, warmth of the stars and the sun must be very troublesome and dull. इनके बिना रहना, सूरज की गर्मी के बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और डल भी. आप देखो अगर एक दिन सूरज नहीं निकलता है तो कैसे डल डल सा डे लगता है. और व्हेन सन राइजेस ब्राइट हो जाता है आपका डे. तो वो कह रहा है कि बिना सूरज के और तारों के ऐसे लगता है कि आपका दिन वो डल है. द ओनली कंपनसेशन ऑफ सच अ होम इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कंट्रोल लाइट एंड हीट. और इसका एक ही कंपनसेशन है कि हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इफ एनीथिंग माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड? क्या हो अगर कुछ ऐसा कि मैनकाइंड को अंडरग्राउंड ही बनाना पड़े हम सभी को एक साथ. इफ द सन ग्रोज कोल्ड, लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मीन्स जब कोई चीज कम होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है. डिसअपियर, वैनिश यू कैन से. तो अगर कह रहा है कि वो सन ग्रोज कोल्ड, अगर सन ठंडा पड़ जाए तो जो अर्थ में लाइफ है वो डेंजर, खतरे में आ जाएगी और धीरे धीरे शायद खत्म भी हो जाएगी. द टेम्परेचर विल गो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट इतना बिलो चला जाएगा कि वो बिल्कुल आपको फ्रीज कर देगा. पीपल विल बी फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड विद एश्योर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट. और लोगों को अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, लाइट हो और हीट हो. लास्ट क्वेश्चन. Do you think there is life on other planets? Can you guess what kind of people there may be on them? आपको लगता है कि अदर प्लैनेट्स में भी लाइफ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो what kind of people वहां पे कैसे लोग रहते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? In what ways are they likely to be different from us? और वो हमारे से किस तरह से अलग हैं? Scientists are trying hard to find out if there is any form of life on planets around the sun. साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि सन के आसपास जो प्लैनेट्स उनमें लाइफ है कि नहीं. सो फार दे हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट्स टू द मून एंड मार्स, कलेक्टेड सैंपल्स ऑफ सॉइल एंड टेकन स्नैपशॉट्स. अब तक हम लोगों ने मून और मार्स में स्पेसक्राफ्ट्स भेजे हैं वहां के सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए और वहां के स्नैपशॉट्स ली हैं. बट दे हैव नॉट फाउंड डेफिनेट प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन देम. लेकिन साइंटिस्ट को अभी तक कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं मिला है कि मार्स या मून में कोई लाइफ है कि नहीं. द काइंड ऑफ पीपल, इफ दे एग्जिस्ट एट ऑल ऑन एनी अदर प्लैनेट, वुड बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस. अगर किसी और प्लैनेट में वाकई एग्जिस्ट करते हैं कोई ह्यूमन बीइंग तो वो हमसे डेफिनेटली डिफरेंट ही होंगे. दे मस्ट हैव एडजस्टेड देमसेल्व्स टू स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली एनवायरमेंट देयर. और क्योंकि वहां का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं है, बिकॉज देर इज नो हीट, देर इज नो लाइट, देर इज नो ऑक्सीजन लाइक दैट जो हमारी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है. अगर वहां पे ये सब चीजें नहीं है तो ऑब्वियसली जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो हमसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन एंड प्लीज डू दिस वर्क केयरफुली एंड ब्यूटिफुली इन योर नोटबुक्स. And by 1st of February or 2nd Feb, please complete your notebooks. And after that, checking schedule will be started, and we will start checking your notebooks. Okay, students, have a great day. Thank you.